Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of simple harmonic motion. बड़ा ही important numerical है, and these types of numericals is to be asked by the examiner frequently in your final exam. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can see the numerical, ताकि आप इस तरह के जो numericals हैं आप उसको अच्छे से attempt कर पाए. This numerical I have taken from class 11th Unit 10 Chapter 14 Oscillations. बड़ा ही important numerical है. Now क्या है numerical? What is the numerical? The numerical is on my back screen. The numerical is a particle is performing simple harmonic motion along x-axis with amplitude 4.0 centimeter and time period 1.2 second. The minimum time taken by the particle to move from x is equal to plus 2 centimeter to x is equal to plus 4 centimeter and back again is, ये हमें कैलकुलेट करना है. दोबारा सुने, क्या कह रहा है वो हमें? ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन along x axis with amplitude 4.0 centimeter and time period 1.2 second. The minimum time taken by the particle to move from x is equal to plus 2 centimeter to x is equal to plus 4 centimeter and back again is. वो क्या कह रहा है हमें? देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन यहाँ पर हम इसका करेंगे अभी. वो कह रहा है कि दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, and this position is called x is equal to 0 centimeter. Now the particle is to be oscillating along x-axis and execute simple harmonic motion. Now this is x is equal to plus 2 centimeter and this is x is equal to plus 4 centimeter. वो क्या कह रहा है? एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है और उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज टू बी डिनोटेड बाय ए, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और उसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो है 1.2 सेकेंड. और वो ऑसिलेट किस किस में कर रहा है? वो कह रहा है कि द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. मान लो दिस इज द मीन पोजीशन and these are the extreme position. The particle will oscillate in between x is equal to plus 2 centimeter to x is equal to plus 4 centimeter. Means वो कह रहा है कि आप हमें पार्टिकल का टाइम बताएं कि वो कितना लेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रोसेस करने में. मीन्स पहले वो x is equal to 2 से x is equal to 4 की तरफ जाएगा, फिर x is equal to 4 से x is equal to 2 की तरफ आएगा. तो इसमें आप हमें ये बताएं कि पार्टिकल जो है कितना टाइम लेगा. आई एम अगेन रिपीटिंग. वो कह रहा है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस. यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट नोट किए गए हैं. एक्स इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, and this is the second point, x is equal to plus 2 centimeter, and this is the another point, x is equal to plus 4 centimeter. मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, this is the point O, that is the mean position, this is the point A and this is the point say B. वो कह रहा है एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस है 1.2 सेकेंड. मीन्स द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट अबाउट दिस मीन पोजिशन टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 1.2 सेकेंड है. तो अब आप हमें बताएं कि कितना मिनिमम टाइम उसको लगेगा. मीन्स पहले वो ए से बी की तरफ जाएगा, दिस इज कॉल्ड 2, और फिर वो बी से ए की तरफ आएगा, दिस इज कॉल्ड फ्रो.
तो टू एंड फ्रो इस तरह की वो मोशन कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर जाने में, और वापस बैक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आप हमें बताएं। मैं कहता हूं कि लेट t1 बी दी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to move from x is equal to plus 2 सेंटीमीटर to x is equal to plus 4 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं कि 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जाने में जो उसको टाइम लग रहा है वो मान लेते हैं कि t1 है। इसी तरह सेम मैनर से लेट t2 बी दी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to move from x is equal to plus 4 सेंटीमीटर to x is equal to plus 2 सेंटीमीटर। इसी तरह मान लेते हैं कि उसको t2 टाइम लग रहा है 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर आने में, तो टोटल टाइम जो उसको लगेगा, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to move from A to B and B to A is capital T, that is T1 plus T2। मान लेते टोटल टाइम इज गिवन बाय T1 प्लस T2, इसको मैं T डैश कह देता हूँ। हमें ये फाइंड आउट करना है, T1 और T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? You know the equation of the simple harmonic motion. Now what is the equation of simple harmonic motion? X is equal to A sin omega t. X is equal to A sin, now what is omega? 2 pi by capital T into small t. तो यहां से x by A is equal to sin 2 pi by t into small t. मल्टीप्लाई करेंगे साइन इनवर्स से, तो साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। तो ये कट गया आपके पास, तो साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। नाउ व्हाट इज स्मॉल टी? दैट इज t बाय 2 पाई साइन इनवर्स x बाई ए। t इज इक्वल टू t बाय 2 पाई साइन इनवर्स x बाई ए। अब हमें पहला निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पे, उसको कितना x इज इक्वल टू 2 पे निकालें, एट x इज इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर में, प्लस 2 सेंटीमीटर निकालें। तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय, now what is the time period? That is t कितना है? 1.2 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 पाई साइन इनवर्स x बाय ए। नाउ व्हाट इज x? x कितना है? ध्यान से देखें 2, और a कितना है? दैट इज 4। तो t आ गया आपके पास 1.2 बाय 2 पाई साइन इनवर्स 1 बाय 2। तो t आ गया 1.2 बाय 2 पाई साइन इनवर्स साइन 1 बाय 2 क्या होता है? साइन पाई बाय 6, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कट गया, तो आपके पास स्मॉल टी की वैल्यू आ रही है, दैट इज 1.2 बाय 2 पाई इंटू पाई बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कटेगा, तो ये आ गया आपके पास 1.2 बाय 12 सेकेंड। इट मीन स्मॉल टी आया आपके पास, ये आया आपके पास 1 बाई 10 सेकेंड। इसका मतलब स्मॉल टी की जो वैल्यू है दैट इज 1.1 बाई 10 सेकेंड। इसी तरह सेम मैनर से हम टाइम पीरियड निकालेंगे x इज इक्वल टू 4 पे। जैसे हमने x इज इक्वल टू 2 पे टाइम पीरियड निकाला है, ऐसे ही सेम मैनर से हम x इज इक्वल टू
4 पे भी टाइम पीरियड निकालेंगे एट x इज इक्वल टू +4 सेंटीमीटर। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, t इज इक्वल टू t बाई 2 पाई साइन इनवर्स x बाई a। नाउ एट x इज इक्वल टू 4 व्हाट इज टाइम, दैट इज 1.2 अपॉन 2 पाई साइन इनवर्स 4 बाई एम्पलीट्यूड इज अगेन 4, तो ये आ गया आपके पास t इज इक्वल टू 1.2 बाई 2 पाई साइन इनवर्स 1। तो t इज इक्वल टू 1.2 बाई 2 पाई। नाउ व्हाट इज 1, दैट इज साइन पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, साइन से साइन कट गया। नाउ t इज इक्वल टू 1.2 बाई 2 पाई इंटू पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया, ये आ गया 12 बाई 10 इंटू 4, इट मीन्स 3 बाई 10 सेकेंड। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे जो टाइम था वो 1 बाई 10 सेकेंड था, x इज इक्वल टू 4 पे जो टाइम था दैट इज 3 बाई 10 सेकेंड था। इसका मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम a टू b, इट मीन्स द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to move from A to B, that is x is equal to +2 centimeter to x is equal to +4 centimeter is given by, that is t1 कितना आएगा, this minus this 3 by 10 second minus 1 by 10 second, that is 2 by 10 second, that is 0.2 सेकेंड। इसका मतलब यहां से यहां जाने में उसको जो टाइम लगा दैट इज 0.2 सेकेंड। सेम मैनर से जब वो यहां से यहां वापस आएगा अगेन उसको जो टाइम लगेगा दैट इज 0.2 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम लगा उसको A से B जाने में 0.2 सेकेंड प्लस B से A आने में दैट इज 0.2 सेकेंड, इट मीन्स टोटल टाइम लगा 0.4 सेकेंड। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि उसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में दैट इज 0.2 सेकेंड, वापिस आने में 0.2 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ऑसिलेट फ्रॉम A to B और B to A अगेन कम बैक दैट इज 0.4 सेकेंड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपको प्रॉब्लम ना आए दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. From there you can see the numerical, download the video and see it how to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।